Hello everyone. As you all know that prelims is the toughest stage of your entire UPSC preparation. When you contrast it with mains, it is evident. मेंस में आपको बहुत सारे फैक्ट्स रटे हो ये मैंडेटरी नहीं है. आपको प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स आते हो ये भी मैंडेटरी नहीं है. Even if you have a broad based understanding, you'll still be able to attempt and question and have a fair shot at clearing the exam. But that's not the case with prelims. आपको एक लेवल की टेक्निकल डेप्थ होनी जरूरी है, कंसेप्चुअल डेप्थ होनी जरूरी है. You should know the facts, and to a certain extent, a bare minimum current affairs coverage needs to be there, or else your prelims attempt is gone. In this session, we are going to discuss the one single strategy that maximizes your chances to clearing prelims. All the other alternate strategies that you are taking up and the fallacies behind them, we'll touch upon those as well, right? This is how your entire prelims map looks like, right? In its whole expanse. 183 micro themes, not a small number at all. अगर हम 3 or more micro themes का filter लगाएं, then it comes down to 166. What does it tell you? This drop is not substantial, right? आपके पास बहुत कम माइक्रो थीम्स हैं जिनसे 1 or 2 क्वेश्चंस आए हैं, राइट? सो यू हैव लेस देन 20 माइक्रो थीम्स जिनसे सिर्फ अ कपल ऑफ क्वेश्चंस हैव कम. सो दिस टेल्स यू दैट UPSC has its favorite micro themes, right? It has topics that it considers fundamental and it is going to test your depth in those fundamental topics, right? उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आपको ट्रिक करे या आपसे रैंडम सरप्राइजेस पूछे, राइट? नन ऑफ दैट इज देयर. आपको ये पैटर्न समझना है एंड दिस बिकम्स लाइक योर बाइबल, योर फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट, right? All the micro themes. Polity, you have 31 micro themes. Economics, you have 15. Geography, 20. Agriculture. Modern history, art and culture, they'll move down. Science and tech, again, is something that you have to rely more on your common sense and general reading rather than very specific books or content, right? So for polity, economics, geography, you'll have very specific handouts, very specific things that you need to focus on. Science and tech थोड़ा सा और broad based हो जाता है. The nature of all these subjects and questions within those differs. That's what we are going to explore next. The hardest hitting slide, right? You have AIR ones who have been repeatedly failing prelims, right? Shakti Dupe failed thrice and Ishita Kishore, she has failed twice, right? Generally, आप कोई भी competitive exam देखेंगे, the top 5 rankers find the initial stages very easy, right? टॉप 5 रैंकर्स के लिए रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट? उनको बहुत, वो हर चीज पे स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो फाइनल लैप पे सबसे ज्यादा उनका एफर्ट लगता है. दैट्स नॉट द केस हियर. दैट शुड टेल यू हाउ कॉम्प्लिकेटेड प्रीलिम्स इज. अगर रैंक वंस को इतना टाइम लग रहा है, it's not easy, right? There are more rank ones. Mostly engineering background के rank ones have been able to do fairly well, and we'll come to that point as well when we talk about prelim sense. We'll discuss that as well. But आप देख सकते हो, this has been the norm, and if you want to break this norm, you have to be micro theme oriented and very precise in your approaches. As you can see, polity, you have close to 31 micro themes. आप बॉटम की थोड़ी माइक्रो थीम्स अगर ड्रॉप ऑफ कर भी दें एंड यू टेक द टॉप 25, दैट्स वेयर यू नीड टू गो इन कंसिडरेबल डेप्थ, राइट? पॉलिटिकल थ्योरी इज देयर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, जुडिशरी, काफी ऑब्वियस और काफी इंपॉर्टेंट साउंडिंग माइक्रो थीम्स हैं ये. अब क्या इतना ही बोलना दैट हमें इनमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, इज इट इनफ? इतना बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं. You need to understand the nature of questions, right? What do I mean by that? The dimensions and the difficulty level. फिर आपको उस बेसिस पे, उस लेवल पे प्रिपेयर करना है. आप ऊपर ऊपर से कुछ लॉजिकल चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, कैसे आप कर पाओगे क्वेश्चन, राइट? तो आपको अब और डीप जाना पड़ेगा, राइट? दैट लेवल ऑफ डेप्थ वुड बी रिक्वायर्ड. Quality questions are a mix of these three: conceptual, factual, and implementation, right?
फैक्चुअल ऑफ कोर्स आपकी स्टैटिक सोर्सेस से आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन इज करंट अफेयर्स, कंसेप्चुअल इज मोर अराउंड of course your static books but also your acumen related to the subject, right? Questions देखते हैं. सबसे पहला, first micro theme itself, political theory, right? The first question, which of the following statements best reflects the chief purpose of Constitution of India? This is not a factual question, it's conceptual. आपसे वो पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है, राइट? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ये. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ड्यू प्रोसेस? अगेन इट्स कॉन्सेप्चुअल, इट्स नॉट फैक्चुअल, राइट? थर्ड क्वेश्चन, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, राइट, एज रिगार्ड टू दिस? आप इसको कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं, फैक्चुअल बोल सकते हैं. आई विल से दैट दिस इज इंप्लीमेंटेशन बिकॉज यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ दिस. अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आपका धीरे धीरे ये वाला सेंस डेवलप होता है दैट हम बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है, राइट? When it comes to the British Parliament, it's a very mature organization, right? Britain का per capita income, development standards, all of those are at a much higher pedestal than all the other democracies. Naturally, वो जिन representatives को elect करके parliament में भेज रहे हैं, they are very highly achieved, high acumen folks, right? So वहाँ parliamentary supremacy है. पार्लियामेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जैसे इंडिया में है, वैसे उनको उस लेवल के चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर मैच्योर, राइट? सिमिलरली अगर हम यूएस एंड इंडिया का कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश करें, प्रेसिडेंट हैज अ लॉट ऑफ पावर्स व्हेन इट कम्स टू यूएस, राइट? इन कॉन्ट्रास्ट द प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव वे टू मेनी पावर्स व्हेन कंपेयर्ड टू द पार्लियामेंट, राइट? सो ये सब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक डेलिब्रेशन है, इट कम्स व्हेन यू आर कीपिंग अ टैब ऑन करंट अफेयर्स और थोड़ा आप अपना नॉलेज बेस एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है? ये आप स्टैटिक से नहीं आंसर कर पाओगे. लेट्स लुक एट माइक्रो थीम नंबर 15, गवर्नर. द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज. पूरे ईयर ये इशू न्यूज में रहा है. इट स्टार्टेड विथ तमिलनाडु गवर्नर blocking certain bills, right? And then they approached the government approached the courts. Court said that governors have 3 months. ये अभी तक ये issue चल रहा है. Last week there was news around this. The president had consulted the Supreme Court, asked for an advisory opinion on 14 matters, including this, right? And even this year, certain news are there with respect to this topic, right? That's why I'll categorize this under implementation, right? Second, the governor of a state, ये आप more factual lines में बोल सकते हो. देखो आपसे precise points पूछे जा रहे हैं and इनको आप logically नहीं solve कर पाओगे. इसमें ज्यादा concept का game, concept अगर इसमें apply भी हो रहा है तो बहुत far fetched है, right? So for explanatory purposes, let's track this under factual itself. ठीक है? अब हम nature of bills देखते हैं. You can see that the first question, again, this is from a time when money bill or finance bill के nature पे बहुत सारा debates चल रहा था. So it might sound factual, but it has a current affairs context to it, right? Second is more factual in nature. Generally आप dissolution के angle से bills को नहीं पढ़ रहे होगे. आप बिल्स को वीटो पावर्स के एंगल से देखते हो, किस हाउस में कौन सा बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है. बट अगर एक हाउस डिसॉल्व हो जाए, आप उस एंगल से नहीं देखते हो बिल्स को, राइट? एंड दिस क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ ट्राइज टू कॉर्नर यू ऑन दैट डायमेंशन, राइट? अब हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन पे आते हैं, कैन आई स्किप करंट अफेयर्स, राइट? हमारा जितना अभी का डिस्कशन हुआ है, पॉलिटी इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट. इवन इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, आप कितना रटते जाओगे, आप क्या क्या रटोगे, राइट? करंट अफेयर्स इंश्योर्स दैट सर्टेन माइक्रो थीम्स पॉप अप एंड यू कैन डबल डाउन ऑन दोज माइक्रो थीम्स. दैट्स द रोल ऑफ करंट अफेयर्स. अगर करंट अफेयर्स नहीं है, आपके लिए वो सारी 31 माइक्रो थीम्स सेम है, उनके अंदर आप 50-60 पेजेस सेम लेवल ऑफ रिगर से मेमोराइज कर रहे होंगे एंड you know that you won't be able to recall any information. Human mind doesn't work in that manner, right?
दैट्स वाई करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट में आप क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, इतनी बेसिक अवेयरनेस तो आपको रखनी ही रखनी। लेट मी क्वांटिफाई इट। अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। हाँ, आपको जो भी हिट रेशियोज मिलेंगे, जो भी लेक्चर में कवरेजेस मिलेंगे, ये क्लोज टू दीज न्यूज आइटम्स के अराउंड रहता है, राइट। बट अगेन, यही इतना बड़ा नंबर देख के आपको लगता है कि लेट्स कीप इट स्टैटिक पे फोकस करते हैं। दैट्स नॉट द केस, राइट। आपको यहां पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। Close to 20 news items out of those 200 are the highest priority. They have been in news just this month, और हम लोग उनको बर्निंग इश्यूज के अंडर टैग करते हैं। आप कुछ करें या ना करें, ये 20 न्यूज आइटम्स तो आपको बहुत प्रॉपरली कवर करना मैंडेटरी है, राइट। विदाउट दीज यू डोंट हैव अ शॉट एट प्रीलिम्स। आप लोग प्लीज एक बात समझने की कोशिश करिए। यूपीएससी नीड्स यू टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। ठीक है, आपने 200 आइटम्स को आप मेमोराइज नहीं कर सकते, दैट्स वन एस्पेक्ट, राइट। ये 20 न्यूज आइटम्स, द मोस्ट प्रायोरिटी, द हाईएस्ट प्रायोरिटी वंस, यू डोंट हैव अ कंफर्ट लेवल विथ रिस्पेक्ट टू दीज, फिर पॉइंट ही क्या है, राइट। फिर आपको आइडिया नहीं है आपके आसपास क्या चल रहा है, राइट। सो 20 becomes like the bare minimum number. On top of this, there are certain topics that are current affairs specific, right? ये आप स्टैटिक में नहीं कवर करते हैं, ये उस साल करंट अफेयर्स में जो चीजें आ रही होंगी इन 15 के करस्पॉन्डिंग आपको वो कवर करना है। स्कीम्स, मिशन, पॉलिसीज, बिल्स, एक्ट, लॉज, की रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन 3 E's, ग्रुपिंग समिट्स ऑन द 3 E's, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, स्पीशीज, ये इन्वायरमेंट के आ गए, राइट। यू हैव स्पेस प्रोग्राम्स, डिफेंस टेक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट, हिस्ट्री का भी 2 थीम्स आ गए, राइट। एंड द 16th वन इज इंटरनेशनल मैपिंग, विच अ लॉट ऑफ यू गाइस स्किप, दैट्स फेयर इनफ, राइट। सो ये चीजें तो आपको करंट अफेयर से करना ही करना है। द 20 burning issues along with keeping a tab on these 15 themes. अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो prelims is going to be very difficult, right? अच्छा, इन 15 के ऊपर भी आपको टैब कैसे करना है? You'll have to tell yourself that no matter what, मेरा स्कीम्स का तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तभी आप स्कीम्स इस तरह से पढ़ोगे that you have the desired depth. अगर आप हर चीज ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो और इनके साथ 100 और थीम्स भी साथ साथ पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू मूव द नीडल। आपके यही वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, राइट। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दीज सेक्शंस। दे आर वेरी डूएबल, राइट। गाइज, आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं, पॉलिटी के आप गवर्नर के क्वेश्चंस ले लीजिए, बिल्स के क्वेश्चंस ले लीजिए। while you are attempting the paper, if your instinct tells you कि हाँ भाई आप कुछ कुछ बातें भूल गए हो और ये क्वेश्चंस आपके गलत होने वाले हैं, राइट, आपका प्रीलिम्स का अटेम्प्ट डाइसी हो रहा है, राइट। दैट्स अ लिटमस टेस्ट, राइट। सिमिलरली फॉर ऑल दीज थीम्स एज वेल, आपके अगर ग्रुपिंग्स और समिट के क्वेश्चंस गलत हो गए जो उस साल हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, पीएम वाज देयर इन दोस समिट्स, आपको कोई आइडिया नहीं था बिकॉज यू ट्रिविलाइज्ड करंट अफेयर्स, देन योर prelims is in jeopardy, that attempt is in jeopardy, all the other ones as well, right? So ये questions, ये themes वो हैं, जो भी students prelims clear कर रहे होते हैं वो ये वाली themes के questions सही करेंगे ही करेंगे। So you can't escape these, right? और ये कितने ही हो रहे हैं, 200 न्यूज, आपके पास 200 न्यूज से we have cut this down to like 30-35 news items every month, right? इतना effort भी अगर आप नहीं लगा सकते हो and you are relying on certain keys or certain booklets that are going to force you to memorize it, it's going to be a problematic journey, right? On the whole, current affairs का expanse ये है, ठीक है। बट ये सब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको CA1 हम लोगों ने एक्सपैंड करके आपको बता दिया है, आपको उतना ही देखना है। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू कवर, दिस इज द बेयर मिनिमम कंटेंट, राइट। अब अगला पार्ट क्या है, डेवलपिंग अ प्रीलिम सेंस, राइट। ये हो गई यहां आपकी, दिस इज स्टेज 1, इतना बेसिक कंटेंट आपको रेडी करना है। अब हम आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 क्या है,
आपने बहुत टॉपर्स को ये बातें बोलते हुए सुना होगा कि प्रिसाइसली हम लोगों को बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, बट वी स्टिल गो हेड एंड वी यूज सर्टेन लॉजिक्स, हमें कुछ फील आती है एंड वी फॉलो आवर गट, गेट दोज क्वेश्चंस राइट। आपको भी ये चीज डेवलप करनी होगी। अब ये कैसे डेवलप होगी? आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। मोस्ट रैंकर्स का ये प्रीलिम सेंस डेवलप हुआ है आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स। उन्होंने खुद तुक्के मारे हैं, गलतियां की हैं, उनका फिर 3-4 साल के बाद थोड़ा थोड़ा सेंस डेवलप हो गया। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। You need to be very structured in your approach and you need to understand the different kinds of logics that exist, right? Extreme keywords सबको पता है, basic extreme keywords, basic elimination, I think वो टेक्निक सबको पता है, बट आपको ये वाली चीजें समझनी है, complementary and contradictory statements, right? Patterns, right? General specific statements. If we come to single statement based questions, word deconstruction, similar options. Example, look at this question. Who among the following were founders of Hind Mazdoor Sabha established in 1948? अब यहाँ पे श्रीजय सर ने किस तरह का लॉजिक लगाया? All the other options have members from South India. Only one option has all North Indian members, and this name is very, it comes from North India, right? नहीं तो ये एक impossible question है, right? Similarly आप देखोगे word deconstruction, right? Prior learning scheme decode करके you are reaching a logical most appropriate option, right? ये sense develop करना is becoming very crucial, right? आप मेमोरी या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? In your test series, you need to know all these techniques and then you need to be experimenting them in your test series, in your test attempts, right? That is going to shape your thinking. That's going to help you understand कौन सी टेक्निक आप कहाँ लगा सकते हो। हर टेक्निक की अपनी लिमिट है, आपकी गलतियां होंगी, आप समझोगे कि ओके, maybe in such kind of questions I can't use these techniques, right? So ये सारी techniques elaborately cover करना is not the point of this session. The main point was that आपको prelim sense develop करना है, ठीक है? And it encompasses a wide range of techniques to arrive to your questions, right? तो आपको टॉपर्स को थोड़ा सा, आप टॉपर्स को ऑब्जर्व करेंगे या सीजन्ड प्रीलिम्स वेटरन्स को ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए, ओनली देन विल यू स्टार्ट गेटिंग अ सेंस एज टू हाउ टू गो अबाउट इट। फाइनल स्टेज इज टू टेस्ट मोर एंड मोर, राइट? यहां पे अब एक कैविएट है, आप जितने मर्जी आपको टेस्ट लिखने, आप टेस्ट लिख लीजिए। इसके पहले वाले अगर आपको आपके 2 स्टेजेस नहीं है, राइट, देन राइटिंग मोर नंबर ऑफ टेस्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्लियर अ प्रीलिम। ये आप में से बहुत लोग डेस्परेशन में बहुत सारे टेस्ट लिख रहे होंगे एंड यू वुड हैव इनकाउंटर्ड फेलियर्स आफ्टर दैट एज वेल, राइट? एंड दैट्स हैपनिंग बिकॉज द फर्स्ट 2 स्टेजेस आर नॉट डन। The first stage with respect to micro theme coverage, current affairs, and the second, developing a prelim sense where logical elimination techniques come in, right? So that's pretty much the whole game plan. इतना execute करने के लिए, right, आपको 4.5-5 months तो bare minimum चाहिए. You would have seen super maps in geography, rivers, and all the associated landforms, right? It takes a lot of time to memorize those topics, right? Polity हम लोगों ने इस सेशन में देखा है. So if you are insecure about prelims, this is the time that you have to start transitioning towards it, right? If you are secure, no worries, अपना मेंस आप थोड़ा सा और strengthen करते जाओ and then post December we can start making the transition, right? That rule, however, will not apply for a lot of you. So get hold of your micro themes booklets. Get hold of all your flash notes where these micro themes are broken down in the desired depth and jump in the game right away.